बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the theory part of our chapter. We have completed first five numericals of our third chapter. Today, this is going to be our last lecture of this chapter, in which we will conclude our next five numericals and MCQs and exercise questions. So starting with numerical number 3.6, page number 83. Now first read its problem statement. Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Remember, we have discussed and we have derived the relation of tension and acceleration of a case in which two bodies are attached vertically through the inextensible string that passes over a frictionless pulley. ठीक है, हमने ये लॉन्ग क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, हमने पूरी इसकी डेरिवेशन परफॉर्म की थी. नाउ अब वो न्यूमेरिकल में हमें कह रहा है कि आपके पास दो मैसेज हैं 52 किलोग्राम, M1 इज़ 52 किलोग्राम्स एंड M2 इज़ 48 किलोग्राम्स. किसके साथ अटैच है? एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है जो एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही है. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. Remember, I have told you that first you have to read the problem statement carefully. In this case, both bodies are moving vertically downward. ठीक है? So this is the first case. The second case was one body is moving along a horizontal surface and the other body is moving vertically. But in this case, both bodies are moving vertically downward. The mass M1 is 52 kilograms and M2 is 48 kilograms. We have to find the tension in the string and the acceleration of both bodies. Now, from the case, we have discussed that the body which is heavier is moving downward. Why? Because the weight or the force due to which the earth attracts the body towards itself is greater. So, what is the direction of acceleration? The direction of the net force. The net force will be W and the acceleration will be in the downward direction because weight is in the downward direction. In case of body B, which is lighter than body A, ठीक है, ये body A है, ये body B है, ठीक है, M1, M2 is less than M1, so body B will move vertically upward. Tension T in the string will be greater than the weight. So tension is the dominant force or the net force. So the direction of tension is upward. So the direction of acceleration will also be upward. ये मैंने आपको थोड़ी सी रिवीजन कराई है उस आर्टिकल की. हमने सॉल्व करना है टेंशन और एक्सेलरेशन की वैल्यूज निकालनी. रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट केस, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर 65. हमने टेंशन और एक्सेलरेशन के फार्मूलाज को डिराइव किया था. यही दोनों फार्मूलाज मैंने आपको बताया था, आपको याद रखने पड़ेंगे दोनों केसेस के लिए. ये वर्टिकल बॉडी का केस है, हमने स्टेटमेंट में पढ़ के ये चीज़ देख ली कि दोनों बॉडीज वर्टिकली मूव करें. सो टेंशन और एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे. टेंशन का फार्मूला है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g. सो m1 है 52, m2 है 58. यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व किया, इनको मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 4992. 52 प्लस 48 100. इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 499.2 न्यूटन्स. बुक में 500 न्यूटन्स दिया हुआ है, उसने बेसिकली 499 को अप्रॉक्सीमेट उसकी वैल्यू राउंड ऑफ करके लिख दिया 500 न्यूटन. आप 499.2 लिख लें, 500 लिख लें, कोई मसला नहीं, ठीक है. लेकिन अगर क्योंकि आप बोर्ड में वही न्यूमेरिकल आते हैं जो बुक में होते हैं, अनसीन नहीं आता, तो आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको आंसर याद ही हो जाता है. तो अगर आपको पता है कि इसका आंसर 500 ही है तो आप 500 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 499 इज ओके. उसके बाद हमने एक्सेलरेशन निकालनी है. एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला है? m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g. उसी तरह m1 और m2 की वैल्यू पुट की, 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10.
52 माइनस 48 आंसर 4 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 सॉल्व करेंगे से कैलकुलेटर से आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, टेंशन इज अ फोर्स सो इट्स यूनिट विल बी न्यूटन, एक्सेलरेशन का यूनिट आपको पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक हो गया। सो ये आपका 3.6 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3.7 न्यूमेरिकल मैंने आपको यहाँ पर नहीं करवा रहा, वो मैं आप लोग खुद करेंगे, जिस तरह मैंने आपको एक और लास्ट टाइम भी न्यूमेरिकल दिया था। सो 3.7 न्यूमेरिकल में क्या कहता है, 3.7 न्यूमेरिकल में सेकंड केस डिस्कस करेगा जिसमें एक बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है along a horizontal surface and the other body is moving vertically downward, ठीक है। So two masses 26 kilograms and 24 kilograms are attached to the ends of a string which passes over a frictionless pulley। ये तो दोनों केसेस में सेम था कि दोनों स्ट्रिंग के साथ अटैच थे और वो स्ट्रिंग एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास कर रही थी। 26 किलोग्राम इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल, कि 26 किलोग्राम का मैस हॉरिजॉन्टल टेबल पर मूव कर रहा है। 24 न्यूटन मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो आपके पास 24, ये यहाँ पर मिस्टेक है, 24 न्यूटन नहीं है, ये 24 किलोग्राम्स है। मेरे पास जो बुक है यहाँ 24 न्यूटन मैस लिखा हुआ है, इसे अगर आपके पास भी न्यूटन है इसे काट कर किलोग्राम्स कर लें। सो 26 वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहा है एंड 24 किलोग्राम मैस इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडी। सेम हमने जिस तरह टेंशन और एक्सेलरेशन पिछले न्यूमेरिकल में मांगी थी, यहाँ भी टेंशन एक्सेलरेशन मांगी है, बट द फॉर्मूला इन केस ऑफ हॉरिजॉन्टल बॉडी एंड अ वर्टिकल बॉडी इज चेंज, ठीक है। इस पे आप आ जाएं पेज नंबर 66 पर, ठीक है। पेज नंबर 66 पर ये आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं एक बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव कर रही है और एक वर्टिकल, और 67 पेज पे एक्सेलरेशन का फार्मूला भी गिवन है और टेंशन का फार्मूला भी गिवन है। जी की वैल्यू आपको पता है, m1 आपके पास है 26 किलोग्राम्स और m2 आपके पास है 24 किलोग्राम्स, ठीक है। ये फार्मूला पेज नंबर 67 पर इक्वेशन 3.12 और 3.13 प्रेजेंट है एक्सेलरेशन की और टेंशन की। इनको यूज करते हुए आपने उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेना है। दोनों मैसेज की वैल्यूज आपके पास प्रॉब्लम में प्रेजेंट है, तो ये न्यूमेरिकल आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 3.8। हाउ मच टाइम is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton. Remember, we have studied an article regarding the relationship between force and momentum, and we have studied that the rate of change of momentum is equal to the applied force or is equal to the force, ठीक है। कि जितने टाइम के साथ साथ मोमेंटम चेंज हो रहा है, हमने देखा एक फाइनल मोमेंटम था, एक इनिशियल मोमेंटम था। इनिशियल मोमेंटम एट सम इनिशियल टाइम एंड फाइनल मोमेंटम एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर आ गई। वो जो चेंज था मोमेंटम का टाइम के साथ, जिसे हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहा था, रेट किसी भी चीज़ के साथ आ जाए उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। सो मोमेंटम के चेंज के साथ रेट आ रहा था, मोमेंटम के चेंज को हमने टाइम से डिवाइड कर ये फार्मूला डिराइव किया था। अब यही फार्मूला इस न्यूमेरिकल में यूज होना है। कैसे? हमें बताया कि 22 न्यूटन सेकंड का मोमेंटम चेंज आ रहा है, ठीक है। ना फाइनल मोमेंटम बताया ना इनिशियल, डायरेक्ट ये बता दिया कि मोमेंटम 22 न्यूटन सेकंड है, या इसको आप चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं कि इतना चेंज आ रहा है मोमेंटम में। ये वैल्यू ऐसे भी हो सकती है कि इनिशियल मोमेंटम आपके पास था फॉर एग्जाम्पल 30 न्यूटन सेकेंड और फाइनल 8 न्यूटन पर सेकेंड, 8 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। या इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम था 8 न्यूटन सेकेंड और फाइनल मोमेंटम था 30 न्यूटन सेकेंड। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, ठीक है। तो आपके पास किस तरह आएगा, 30 - 8 तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, या डेल्टा पी भी मैंने आपको बताया था, ये डेल्टा सिंबल जो होता है ये ट्राइंगल, ये चेंज को शो करता है। सो हाँ, उसने हमें डायरेक्ट फाइनल वैल्यू भी नहीं दी इनिशियल, उसने डायरेक्ट वो जो चेंज आया मोमेंटम में उसकी वैल्यू दे दी है, कितनी, 22 न्यूटन सेकेंड। और उसने बता दिया फोर्स 20 न्यूटन है। आप बताएं कितना टाइम लगेगा ये 20 न्यूटन की फोर्स के मोमेंटम को 22 न्यूटन सेकेंड चेंज करने में। सो हमें टाइम हमने निकालना है, टू फाइंड में टाइम आ जाएगा सोल्यूशन में। एज वी नो डैट
F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पर है, पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, इक्वेशन 3.14 जो कि हमने डिराइव भी की थी क्लास में। सो F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। F कितना है 20, पी एफ माइनस पी आई, ये चेंज इन मोमेंटम कितना है 22, टाइम यहाँ डिवाइड हो रहा है, टाइम की वैल्यू हमने निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे टाइम वहाँ चला जाएगा और फोर्स इधर आ जाएगी, तो फोर्स यहाँ आकर डिवाइड, टाइम वहाँ जाकर मल्टीप्लाई। सो 22 को किससे डिवाइड कर देंगे 20 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.1 सेकेंड। सो फाइनल आंसर विल बी 1.1 सेकेंड्स। सो ये आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज कि इतने सेकंड में इतनी फोर्स ने इतने मोमेंटम को चेंज किया। नेक्स्ट सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 3.9। 3.9 में वो क्या कहता है, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, पिछले चैप्टर की तरह मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि सिंपल एक एक फार्मूला यूज होना है और कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 3.9, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 5 किलोग्राम एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6। वो कह रहा है एक मैस है, ब्लॉक है, उसका मैस है 5 किलोग्राम्स और उसको आप मार्बल पे मूव करवा रहे हैं। वो कह रहा है मार्बल और उस ब्लॉक के दरमियान कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी अगर तो उस ब्लॉक का मैस है 5 किलोग्राम्स और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे हमने म्यू से रिप्रेजेंट किया था, माइक्रो जो मैंने आपको सिंबल बताया था, यू लिखकर इसको, ये जो लेफ्ट वाला है इसका साइज है इसको और राइट वाले को इस तरह से आगे बढ़ा दें तो ये आपके पास म्यू बन जाए। इस म्यू को हमने क्या कहा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। एक तरफ होती है रिएक्शन फोर्स और एक तरफ होती है, ऊपर होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और नीचे होती है वो रिएक्शन फोर्स जो कि बॉडी एक्सर्ट कर रही होती है, और उसके ऑपोजिट जो एक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स होती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है, या कोई मैस पड़ा हुआ है तो जो रिएक्शन फोर्स होगी, जो ब्लॉक पड़ा हुआ है, अगर इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक है, इसको मैं मूव करवा रहा हूँ, तो ये जो इसकी रिएक्शन फोर्स है बेसिकली वो जितना वेट होगा उतनी फोर्स वो एक्सर्ट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सो वेट पहले निकालना पड़ेगा इसका, ये मैस है, हमें फोर्स चाहिए या रिएक्शन फोर्स चाहिए, ठीक है। आप देख भी सकते हैं पेज नंबर 73, 3.22 इक्वेशन, R इज इक्वल टू एम जी, उसके ऊपर वाली लाइन अगर पढ़ें, इफ m बी द मैस ऑफ द ब्लॉक देन फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस ही है ना, ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस मार्बल पर ही मूव करे, तो हॉरिजॉन्टल केस में रिएक्शन फोर्स विल बी इक्वल टू एम जी। सो हमारे पास मैस और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या एफ एस फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी। सो सोल्यूशन में पहले हम इसको वेट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, सिंपल फार्मूला W इज इक्वल टू, या W इस केस में हो जाएगा रिएक्शन फोर्स, तो इसलिए उसको R लिखा, R इज इक्वल टू एम जी, सिंपल जो हम पढ़ के आए हैं फॉर्मूला। मैस है 5, G की वैल्यू आपको पता है क्या है 10, 5 इंटू 10 आंसर विल बी 50 न्यूटन्स, ये रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, तो इसका यूनिट क्या आएगा न्यूटन्स। नेक्स्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा है, दिखा भी देता हूँ आपको, बार बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप भूल गए हैं तो आपको रिवाइज हो जाए। पेज नंबर 73, इक्वेशन नंबर 3.23, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है, एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी, या एम जी की जगह आर भी लिख सकते हैं, एक ही बात। 0.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। सो एफ एस विल बी, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फोर्स ही है, उसका यूनिट भी क्या होगा न्यूटन्स होगा, तो एफ एस विल बी 30 न्यूटन्स। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का जो कि है 3.10, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर जो आपके पास ये न्यूमेरिकल किया है इसको रेस कर देते हैं, ठीक है, आप रिवाइंड कर कर भी इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखें 3.10 न्यूमेरिकल में, 3.10 न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मैस 0.5 kilograms to move in a circle of radius 50 centimeter with a speed of 3 meter per second। उसने सेंट्रीपिटल फोर्स मांगी है, ठीक है, उसने क्या मांगी है सेंट्रीपिटल फोर्स। 3.10 न्यूमेरिकल, मैस कितना है 0.5 kilograms,
रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर्स। मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में भी जब हमने डिस्कस किया है कि अगर तो यूनिट्स एसआई नहीं है तो उनको एसआई में कन्वर्ट करना है। मैस का एसआई यूनिट है किलोग्राम्स, रेडियस लेंथ ही होती है, सर्कल का जो सेंटर से लेकर किसी पॉइंट के डिस्टेंस वो डिस्टेंस ही होता है। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, एसआई यूनिट होता है मीटर नॉट सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करें, डिवाइड कर दें 100 से, आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5 मीटर्स। यह आ गया रेडियस कि वो क्योंकि सर्कुलर पाथ में मूव करिए तो कोई ना कोई उस सर्कल का रेडियस होगा। लास्ट, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। तीन चीजें थी ना सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले में, मैस, वेलोसिटी और रेडियस। सो वेलोसिटी कितनी है या स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड। टू फाइंड, हमने फाइंड करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स। Remember from the lecture of centripetal force, we have derived its formula. What is its formula? Page number 78, equation number 3.26, Fc is equal to mv square over r. So solution में क्या आ जाएगा? Formula Fc is equal to mv square over r, where m is the mass of the body, v is the velocity of the body, and r is the radius of the circular track on which the body is moving. ठीक है, so Fc m क्या है 0.5। रिमेंबर v का स्क्वायर है। बच्चे ये गलती करते हैं न्यूमेरिकल करने में कि वो सिंपल लिख देते हैं, जैसे v की वैल्यू 3 है, वो 3 डिवाइडेड बाय r कितना है 0.5, इस तरह लिख देते हैं। ये गलत है, v का स्क्वायर लेना है आपने। v का क्या लेना है? स्क्वायर लेना है। ठीक है, सो v का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर आपको क्या पता है? 3 इंटू 3 9, 0.5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 0.5। इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0.5 से वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर विल बी 9 न्यूटन्स, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है तो उसका यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी 9 न्यूटन्स। सो हियर ऑल योर न्यूमेरिकल्स हैव बीन कंप्लीटेड। सारे न्यूमेरिकल्स आपको करवा दिए हैं। 3.7 मैंने आपको खुद करने को दिया है, फॉर्मूला बता दी, वो आपने खुद से सॉल्व करने है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड MCQs. Now we will move towards exercise questions and MCQs. Exercise questions और MCQs पर मूव करने से पहले मैं आपको ये आपसे चाहूँगा कि इस वक्त आपके पास ये नोट्स मौजूद हों। ठीक है, ये नोट्स आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू पहुँच गए होंगे। इन नोट्स में जैसे कि पिछले चैप्टर की तरह मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए हैं। अच्छा, पेज नंबर 1 अगर आप ओपन करें नोट्स का, तो पेज नंबर 1 से पेज नंबर 7 तक ये अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं हैं। कुछ इसमें से हो सकता है एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी हों, लेकिन ज़्यादातर अंदर से ये क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, पेज नंबर 8 से आपके पास स्टार्ट हो रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पेज नंबर 8 और 9 पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आपके पास। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 10 से लेकर आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फिर सेकेंड लॉ है, फिर मास और वेट में डिफरेंस है, फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने वो टेंशन वाले 2 केसेस इसमें नहीं डाले क्योंकि वो डेरिवेशन मैंने पूरी क्लास में करवा दी थी, वो लॉन्ग क्वेश्चन क्लास में अच्छा अटैम्प्ट करवा दिया था। तो अगर किसी को नहीं वो यहाँ से नहीं क्लियर हो रहा तो वो फिर लेक्चर्स को जाकर देख लो, उसमें मैंने बताया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दोनों एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस बना दिए हैं, गन और बुलेट और 2 स्फीयर्स के। उसके बाद लास्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसका भी लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया। उसके बाद पेज नंबर 19 और पेज नंबर 20 पर आपके पास मौजूद हैं MCQs। 22 MCQs मैंने दिए हैं। उसके अलावा हम एक्सरसाइज के भी MCQs हमारे पास 9 MCQs हैं, टोटल 31 MCQs आपके हो गए हैं। उसके अलावा आप भी खुद से बना सकते हैं MCQs। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पेज नंबर 21, MCQs पर आते हैं। नंबर 1, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, नेट फोर्स, फ्रिक्शन, मोमेंटम। ठीक है, सो अगर तो कोई नेट फोर्स, हमने ये पढ़ा था कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया भी जिसे कहा था कि बॉडी कंटिन्यूज इट्स मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस और अनटिल अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट।
जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती तब तक वो क्या करेगी, अपनी मोशन को, चाहे वो रेस्ट पर है या मोशन में है, उसको कंटिन्यू करेगी। ठीक है, सो राइट ऑप्शन आपके पास होगी ऑप्शन बी, इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, नेट फोर्स। नेक्स्ट, इनर्शिया डिपेंड अपॉन फोर्स, नेट फोर्स, मास, वेलोसिटी। ये जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी बताया था, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, यहाँ आ भी गया कि इनर्शिया बॉडी का डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा रेजिस्ट करेगी अपनी स्टेट को कंटिन्यू करने के लिए, जितना कम मास होगा उतना कम रेजिस्ट करेगी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मास। Number 3, a boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall. क्या हो रहा है, एक इस तरह से आपके पास क्या है, ठीक है, इस तरह से बस है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बस से, ठीक है, एक पर्सन क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है, बस से क्या कर रहा है, एक पर्सन बाहर निकल रहा है। अब जब वो बॉय बाहर निकल रहा है तो क्या डेंजर हो सकता है उसके लिए, उसमें उसने ऑप्शंस दिए। नंबर 1, टूवर्ड्स द मूविंग बस, ठीक है, कि वो मूविंग बस की तरफ मूव करे, ठीक है। नंबर बी, अवे फ्रॉम द बस। 3, सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और डी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब टूवर्ड्स द मूविंग बस अगर वो मूव कर रहा है तो अब तो उसको इतना डेंजर नहीं है, ठीक है, कि जहाँ पर बस मूव कर रही है वहाँ पर वो मूव कर रहा है, उसमें उसको इतना डेंजर नहीं है क्योंकि वो आराम से मूव कर सकता है। सेकंड है अवे फ्रॉम द बस। अब बस जा रही है यहाँ, वो मूव कर रहा है यहाँ, तब भी उसको कोई डेंजर नहीं है, आराम से वो मूव कर सकता है, जंप कर सकता है अवे बस। सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर तो जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है तब डेंजर है कि कुछ हो सकता है, ठीक है, तब डेंजर है कि वो गिर सकता है, कि जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर वो मूव करता है तो उसके गिरने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है, उसके गिरने के चांस, क्योंकि एक तो वेलोसिटी वो होगी जिससे बस मूव कर रही है, वो उस पर्सन को भी उसकी उसी, फॉर एग्जांपल वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, 20-40 किलोमीटर आवर, 60 किलोमीटर आवर से मूव कर रही है, तब डेंजर है कि वो अगर उसी मोशन की डायरेक्शन में फॉल करता है बॉय, तब वो जंप करता है, तब वो गिर सकता है। ऑपोजिट टू द डायरेक्शन का मतलब वही कि अगर वो अवे फ्रॉम द बस मूव करे तब भी उसको कोई डेंजर नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपके पास क्या होगी, ऑप्शन सी, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अब डेंजर हो सकता है। नेक्स्ट, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस 10 न्यूटन ईच। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, वो क्या कह रहा है, अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच, ये स्ट्रिंग है आपके पास, उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग रही है 10 न्यूटन और एक फोर्स यहाँ लग रही है 10 न्यूटन। वो कह रहा है कि कितनी टेंशन होगी स्ट्रिंग में। रिमेंबर, मैंने आपको बहुत दफ़ा ये एग्जांपल दी हुई है, जैसे मैंने कहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और एक बंदा मुझे यहाँ से 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है और एक यहाँ 10 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक इस डायरेक्शन में लगा रहा है, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 10 माइनस 10। क्यों? ये माइनस शो कर रहा है डायरेक्शन को, एक लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और एक फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो दूसरी डायरेक्शन के साथ नेगेटिव आ जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। मैं कहाँ रहूंगा, मैं रेस्ट पर ही रहूंगा, या नेक्स्ट चैप्टर में हमने जाकर इक्विलिब्रियम भी पढ़ना है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी अगर मूव नहीं कर रही है, नेट फोर्स उस पर 0 है। तो सेम इज द केस हियर, एक स्ट्रिंग को 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस से खींचा जा रहा है। जैसे एक स्ट्रिंग है, उसको मैं दोनों तरफ एक ही फोर्स लगाता हूं तो स्ट्रिंग तो मूव नहीं करेगी, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। उसने क्या पूछा है, टेंशन बताओ कितनी होगी स्ट्रिंग में। अब क्योंकि जितनी फोर्स उस पर लग रही है, जितनी उस पर फोर्स अप्लाई फोर्स लगा रहे हैं, उतनी ही उस स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आपको पता है जब स्ट्रिंग पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑपोजिट उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करती है, उसके अंदर तनाव प्रोड्यूस होता है, या जिसको हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कहते हैं। सो जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, उतनी ही स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन प्रोड्यूस होगी, एंड दैट विल बी 10 न्यूटन्स, ठीक है। वो डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर इधर लगा रहे हैं तो टेंशन यहाँ, इधर लगा रहे हैं तो टेंशन दूसरी तरफ हो जाएगी। लेकिन टेंशन जितनी फोर्स अप्लाई करें उतनी ही उसमें टेंशन प्रोड्यूस होगी, विच विल बी 10 न्यूटन। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 10 न्यूटन।
नेक्स्ट, द mass of a body decreases when accelerated, increases when accelerated, decreases when moving with high velocities, या डी ऑप्शन नन ऑफ अबव। ठीक है, अब आपको पता है कि जो आपका मैस होता है, मैस में कोई चेंज नहीं आता। अगर मैं एक्सेलरेशन बढ़ा देता हूँ, फॉर एग्जांपल गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, मैं गाड़ी की एक्सेलरेशन बढ़ा देता हूँ, एक्सेलरेटर दबाता हूँ गाड़ी का, तो क्या गाड़ी के मैस पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? गाड़ी के मैस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, फोर्स में चेंज आ रहा है, मैस में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, या अगर आप एक आदमी को धक्का दे रहे हैं, एक्सेलरेशन उस पर प्रोवाइड करें, तो इस तरह नहीं होगा कि धक्का देने के बाद उसका मैस कम या ज़्यादा हो जाएगा, मैस उसका उतना ही रहेगा। सो मैस चेंज नहीं होता बॉडी का। ठीक है, सो द मैस ऑफ द बॉडी, आपके पास ऑप्शन क्या आएगी? ऑप्शन डी, नन ऑफ अबव, कि मैस में कोई चेंज नहीं आता। नेक्स्ट, नंबर 6, two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the bodies is, अभी हमने वर्क फॉर डे 19 में ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है कि acceleration for two bodies moving vertically attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless pulley। ठीक है, ये आपके पास केस था m1 और ये m2। इस केस में एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला था? अभी हमने लास्ट लेक्चर डे में देखा, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। नेक्स्ट, 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ns माइनस 1। सो राइट ऑप्शन मैंने आपको प्रूव भी करवाया था, न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम का क्या यूनिट होता है? न्यूटन सेकेंड या ns, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द। कार्ट बेसिकली कहते हैं वो जो आपके पास घोड़ा गाड़ी होती है, अब तो खैर बहुत कम, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं, पीछे जो लगा होता है जहाँ पर बैठते हैं लोग। ठीक है, घोड़ा गाड़ी में, उसको कहते हैं कार्ट। सो व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द, मतलब जब हॉर्स पुश करता है कार्ट को, जब वो उसको मूव करता है, तो मूव करने से क्या होता है? वो कार्ट को पुश करता है अपनी तरफ। अब वो कह रहे हैं जब वो उसको पुश करेगा तो एक्शन फोर्स कहाँ पर होगी? अब देखें, हॉर्स खड़ा होगा किसी ज़मीन पर, अर्थ पर होगा, ठीक है, किसी सरफेस पर होगा। एक तो जब वो मूव करेगा तो वो एक्शन प्रोड्यूस करेगा उस ग्राउंड पर, जिसके रिएक्शन में उसके फीट और उसके जो अर्थ है उसके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? अपोज करेगी उसके मोशन को। सो एक फोर्स होगी जो कि वो अप्लाई करेगा अर्थ पर, और एक फोर्स होगी जिससे वो पुल करेगा किसे? कार्ट को। ठीक है, सो जो एक्शन फोर्स होगी हॉर्स जो लगाएगा वो दो होंगी, एक तो अर्थ पर होगी ज़मीन पर, और एक होगी कार्ट पर, जो कि छकड़ा मैंने आपको बताया। ठीक है, सो अर्थ एंड कार्ट, ऑप्शन डी। Which of the next, number 9, which of the following material lowers friction when pushed between metal plates? Water, fine marble powder, air, oil। ये मैंने आपको बताया भी था कि हम लोअर करने के लिए फ्रिक्शन को ऑयलिंग करते हैं या लुब्रिकेटिंग करते हैं, लुब्रिकेशन करते हैं। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑयल। आपके एमसीक्यूज खत्म हो गए, अब आते हैं हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ। पहला है 3.2, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स: इनर्शिया, मोमेंटम, फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स। इनर्शिया की डेफिनेशन जल्दी से देख लें, कहाँ पर है? पेज नंबर 58। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, साथ में लिख देंगे इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। नंबर 2, मोमेंटम। मोमेंटम की डेफिनेशन है पेज नंबर 59। ठीक है, मोमेंटम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका फार्मूला, उसका यूनिट, क्या यूनिट होता है? ns, और मोमेंटम होता है वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, फोर्स। फोर्स की डेफिनेशन पेज नंबर 58, जो डेफिनेशन पिंक बॉक्स में लिखी है वो, और साथ में फोर्स का यूनिट आ जाएगा विच इज़ न्यूटन। नेक्स्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाएगी पेज नंबर 72, फ्रिक्शन की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो आ जाएगी, और साथ में फॉर्मूला आ जाएगा Fs इज इक्वल टू म्यू mg। ठीक है, उसके बाद है सेंट्रीपिटल फोर्स, पेज नंबर 77। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन लिखेंगे, इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो उसका फॉर्मूला
है वो भी मेंशन कर देंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकती हैं पांचों डेफिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैस एंड वेट। मैस एंड वेट का डिफरेंस मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको नोट्स में। आप आए पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 नोट्स का ओपन करेंगे तो यहाँ क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछता है, मैंने 6 डिफरेंस लिखे हैं। शॉर्ट में पूछता है तो 3, लॉन्ग में पूछता है तो ये सारे 6 के 6। नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन का भी आपको पता है। एक्शन वो फोर्स जो अप्लाई होती है, पेज नंबर 63 इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आपको एक्शन और रिएक्शन फोर्स की डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? लाइन लगाकर एक तरफ एक चीज़, दूसरी तरफ दूसरी चीज़। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट 3.4, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। तो इसमें क्या आ जाएगी? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट आ जाएगी। पेज नंबर आपके पास 59 लास्ट पर उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, और एक एग्जांपल भी साथ में लिख देंगे, कोई सी भी जो इनमें मेंशन की है। नेक्स्ट 3.5, व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। पेज नंबर अब आ जाएं आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, पेज नंबर नोट्स के पेज नंबर 8 पर। नोट्स का पेज नंबर 8 निकाल लें, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, नीचे हेडिंग है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस। इसका आंसर लिखा हुआ है, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न और सडनली स्टॉप्स और स्पीड्स अप। कि अगर तो आप रूफ पर बैठे हुए हैं और बस ने एकदम शार्प टर्न लिया है या एकदम ब्रेक लगाई है, सडनली तेजी से मूव किया, 3 केसेस हो सकते हैं। The passengers on the roof of the bus cannot maintain their balance due to inertia. क्यों? क्योंकि इनर्शिया उन्हें ये मजबूर करवा रहा है कि आप स्ट्रेट ही मूव करें, लेकिन अपने मोशन को कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर शार्प टर्न लेती है बस तो उन्हें कर्व पाथ में मूव करना पड़ेगा। अगर तो उनका मैस ज़्यादा है तो आराम से वो बैलेंस हो सकते हैं, लेकिन अगर मैस कम है, इनर्शिया कम हो जाएगा तो वो अनबैलेंस होकर एकदम, अगर शार्प टर्न लेती है तो अनबैलेंस होकर उनके गिरने का खदशा हो सकता है, गिरने का नुकसान हो सकता है। ठीक है, सो द पैसेंजर्स ऑन द रूफ ऑफ द बस कैन नॉट मेंटेन देयर बैलेंस ड्यू टू इनर्शिया, दे मे फॉल ऑन आइदर और बिहाइंड और लेफ्ट और राइट साइड। क्या या तो वो आगे या पीछे या लेफ्ट या राइट साइड पर मूव कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट, why does a passenger move outward when a bus takes a turn? कि बस जब टर्न लेती है तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों मूव करते हैं? इसका मैंने आपको बताया भी था पेज नंबर, जब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया था, पेज नंबर 60 डू यू नो वाले बॉक्स में। When a bus takes a sharp turn, passengers fall in the outward direction. It is due to inertia. They want to continue their motion in a straight line, thus fall outwards. कि वो चाहते हैं कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो चाहते हैं कि मोशन को कंटिन्यू रखें, लेकिन कर्व पाथ में जब बस मूव करती है, शार्प टर्न लेती है, तो वो आउटवर्ड बाहर की डायरेक्शन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने देखा भी होगा जब एकदम बस टर्न लेती है तो आप भी उसके साथ आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर वो जो डू यू नो में स्टेटमेंट या जो लिखा हुआ टेक्स्ट वो भी आ सकता है जो मैंने लिखा हुआ है। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, पैसेंजर्स इन द बस मूव इन द आउटवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इनर्शिया, टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट, what will be the tension in a rope that is pulled from its ends by two opposite forces 100 Newton each? ठीक है, वो एग्जाम्पल जो हमने MCQs में डिस्कस की थी, यहाँ उसने 100 न्यूटन कह दिया, वहाँ थी 10 न्यूटन। कि स्ट्रिंग्स के एंड्स पर 2 इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रही हैं 100 न्यूटन की। जब दोनों इसी तरह इक्वल ऑपोजिट फोर्सेस लगेंगी, बॉडी मूव नहीं करेगी। ठीक है, नेट फोर्स 0 हो जाएगी, लेकिन टेंशन बॉडी में प्रोड्यूस होगी जितनी फोर्स बॉडी में अप्लाई की जा रही है, और फोर्स कितनी है? 100 न्यूटन। सो द टेंशन विल आल्सो बी 100 न्यूटन्स। ठीक है, जिस तरह हमने MCQs में डिस्कस किया था। सो द रोप इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय 2 ऑपोजिट फोर्सेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन, सो द नेट फोर्स विल बी 0। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 100 न्यूटन। जितनी अप्लाई फोर्स हो रही है उतनी उस स्ट्रिंग में क्योंकि टेंशन प्रोड्यूस होगी, सो 100 न्यूटन ही टेंशन होगी। नेक्स्ट आपके पास है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट।
then how does a body move? 3.9 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 नोट्स में. When something is pulled, action force overcomes. ये pulled किया, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई है. pulled के बाद कॉमा लगा लें और action के बाद जो कॉमा है उसको कट कर लें. So when something is pulled, comma, action force overcomes or dominates the reaction force, so the body moves as the horse pushes the cart. In this case, action force of horse overcomes reaction force or weight of the cart. अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी. फॉर एग्जाम्पल मैंने इस मार्कर की आपको एग्जाम्पल बताई थी. क्या था? इस वक्त ये मार्कर रेस्ट पर है. क्यों? बिकॉज इस पर जो नेट फोर्स एक्ट करी है वो ज़ीरो. एक उसका वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एक ऊपर से जो मैंने इसे होल्ड किया हुआ है, एक ये फोर्स है. जितना उसका वेट है उतनी फोर्स से मैंने इसको ऊपर होल्ड किया हुआ है, इसलिए रेस्ट पर है. अब वो कह रहा है कि अगर तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल है मैग्नीट्यूड में, सेम है, तो बॉडी किस तरह मूव करती है? बॉडी इसलिए मूव करती है क्योंकि कोई एक फोर्स डोमिनेट हो जाती है, कोई एक फोर्स ओवरकम कर जाती है, हावी हो जाती है. अब इस केस में ये एक्शन मैंने इस पर प्रोड्यूस किया, रिएक्शन इसका वेट. अब अगर मैं इसको छोड़ देता हूं, एक्शन फोर्स हो गई जीरो, पीछे रह गया रिएक्शन फोर्स जो कि उसका वेट था, वो उस एक्शन फोर्स पर डोमिनेट कर गई या उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई. अब ऊपर से फोर्स हो गई जीरो, नीचे उसका वेट जो फोर्स है वो हो गई 10, तो इसलिए बॉडी नीचे की तरफ मूव कर गई. जो रिएक्शन फोर्स थी वो ज्यादा हो गई एक्शन फोर्स से, इसलिए बॉडी नीचे की तरफ मूव कर गई. यही एग्जांपल आपके पास आती है हॉर्स और कार्ट में, जो कि मैंने आपको बताया घोड़ा गाड़ी में, कि जब वो घोड़ा मूव करता है तो एक फोर्स जो मैंने आपको बताया घोड़ा लगाता है, हॉर्स लगाता है अर्थ और कार्ट पे. एक ऑपोजिट फोर्स होगी जो कि अर्थ लगाएगी हॉर्स पर और कार्ट लगाएगी किस पर? हॉर्स पर. ठीक है, ऑपोजिट, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ ये कहता है हर एक्शन के बदले एक रिएक्शन फोर्स होती है. सो हॉर्स इसलिए मूव करता है क्योंकि जो हॉर्स की फोर्स है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लैंड या अर्थ एंड फीट ऑफ द हॉर्स, वो जो अप्लाइड फोर्स जो कि हॉर्स लगाता है अर्थ पर वो ज्यादा हो जाती है. अप्लाइड फोर्स FA से फॉर एग्जांपल मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, वो ज्यादा हो जाती है किससे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फीट ऑफ द हॉर्स एंड द रोड, और फोर्स बिटवीन रिएक्शन फोर्स ऑफ कार्ट ऑन हॉर्स. एक फोर्स है जो हॉर्स लगा रहा है, कार्ट पर पुश कर रहा है उसे आगे की तरफ, और एक फोर्स ऑपोजिट फोर्स कार्ट हॉर्स पर लगा रहा है कि वो उसे पीछे की तरफ ला रहा है. लेकिन हॉर्स की फोर्स डोमिनेट कर जाती है. ठीक है, किससे? दो फोर्सेस पे डोमिनेट कर जाती है. एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके पांव और उसके अर्थ के दरमियान, उस पर डोमिनेट कर जाती है, वो जो अप्लाइड फोर्स होती है हॉर्स की. दूसरी वो फोर्स डोमिनेट किस पे करती है? जो कि कार्ट हॉर्स पर लगाता है, उस पर डोमिनेट कर. अगर तो हॉर्स दोनों फोर्सेस को डोमिनेट कर जाता है, हॉर्स की अप्लाई फोर्स दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा हो जाती है, तब हॉर्स मूव करेगा. अगर तो कम है तो हॉर्स मूव नहीं करेगा बल्कि वहीं रुक जाएगा. ठीक है, सो यही वो कह रहा है, व्हेन समथिंग इज पुल्ड एक्शन फोर्स ओवरकम्स और डोमिनेट्स द रिएक्शन फोर्स, सो द बॉडी मूव्स एज द हॉर्स पुल्स द कार्ट. इन दिस केस एक्शन फोर्स ऑफ हॉर्स जो कि हॉर्स लगा रहा है ओवरकम्स रिएक्शन फोर्स जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, और वेट ऑफ द कार्ट जो कि वेट, उसके अंदर कोई वेट है ना, वो उसको ओवरकम कर जाता है. नेक्स्ट आपके पास है वही जो हमने अभी डिस्कस किया, अ हॉर्स पुल्स द कार्ट इफ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव. वही कि वो जो एक्शन फोर्स हॉर्स लगाता है वो ओवरकम कर जाती है रिएक्शन फोर्स के जो कि कार्ट और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थ उस पर लगा रही है, इसलिए हॉर्स मूव करता है. सो द हॉर्स अप्लाई फोर्स ऑन द रोड बाय हिज फीट, द रिएक्शन इज गिवन बाय द रोड ऑन द हॉर्स ड्यू टू विच द हॉर्स मूव्स, द कार्ट विच इज टाइड विद द हॉर्स विल ऑल्सो मूव. कि जब हॉर्स मूव करेगा तो हॉर्स के साथ ही वो कार्ट जो होता है वो बंधा होता है, तो वो भी हॉर्स के साथ साथ मूव करता है, क्योंकि हॉर्स जो अप्लाई फोर्स, घोड़ा फोर्स अप्लाई कर रहा है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स अप्लाइड बाय द कार्ट ऑन द हॉर्स एंड बाय द अर्थ ऑन द हॉर्स. वो कम है एज कंपेयर टू जो हॉर्स फोर्स लगा रहा है, इसलिए हॉर्स आगे की तरफ मूव करता है. नेक्स्ट, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ये मैंने डिस्कस आपको हमने किया हुआ है.
एक लेक्चर में, पेज नंबर 69, पिंक बॉक्स, द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ये लॉ आ गया, साथ में इसकी स्टेटमेंट आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल, या इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं लिखनी, 2 नंबर नहीं मिलेंगे उसके नीचे, बल्कि लिखना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ भी आप। नेक्स्ट, वाई इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट, कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें आ जाए पेज नंबर 71 पर, इसमें आप इंपॉर्टेंस देख सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ, रॉकेट्स एंड जेट इंजन्स ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, यानी कि सेम प्रिंसिपल की जगह आप लिख देंगे रॉकेट्स एंड जेट्स इंजन्स ऑल्सो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसके बाद ये सारा पैराग्राफ आ जाएगा, इसमें इसका आपके पास आंसर आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अगर ये ना होता तो फिर ना हम गन चला सकते, ना रॉकेट को स्पेस में भेज सकते। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 9 नोट्स में, सी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप 13 पे जाते हैं नोट्स में, पेज नंबर आपके पास पेज नंबर यहाँ मेंशन नहीं हुआ हुआ, पेज नंबर 3 के बाद जो टर्न आप करेंगे पेज, वहाँ पर पेज नंबर मेंशन नहीं हुआ हुआ, वहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पेज नंबर 3 से जब आप टर्न करेंगे अगला पेज तो क्वेश्चन नंबर 13 नजर आएगा। व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिकॉइल्स व्हाई। अब मैंने इतनी ज़्यादा हमारी डिस्कशन, अब मैंने आपको बताया था, हो गई थी कि क्यों रिकॉइल करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ओबे करने के लिए या मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, कि जितनी वेलोसिटी से बुलेट मूव की है उतनी ही वेलोसिटी से गन पीछे की तरफ रिकॉइल करती है टू कंजर्व मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कि इनिशियल मोमेंटम जब गन ने फायर किया वो फाइनल फायर करने से पहले वो फाइनल मोमेंटम की क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इसलिए गन पीछे की तरफ आती है। So as the gun is fired, bullet shoots out of the gun and acquires momentum. कि जब वो बुलेट निकलती है तो कुछ मोमेंटम के साथ निकलती है। To conserve momentum of the system, the gun recoils according to law of conservation of momentum. Total initial momentum of the system before the gun is fired should be equal to total final momentum of the system after the gun is fired. तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। Next, describe 2 situations in which force of friction is needed. अब इसमें एडवांटेजेस आ जाएंगे फ्रिक्शन के। ठीक है, इसमें आप क्या लिख सकते हैं, पेज नंबर 76। ठीक है, इसमें आप 2 एग्जांपल्स हैं। एक तो थर्ड लाइन में अगर आप देखें, फ्रिक्शंस एनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी कैन नॉट रन ऑन अ स्लिपरी ग्राउंड, अ स्लिपरी ग्राउंड ऑफर्स वेरी लिटिल फ्रिक्शन। एक ये आ गई, एक केस ये आ गया, उसने 2 केस मांगे थे। दूसरे केस में आप लिख सकते हैं पेंसिल वाली एग्जाम्पल, सेकेंड लाइन में, वी कैन नॉट राइट इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल। एक ये आ जाएगा सेकेंड और थर्ड लाइन, और एक यानी कि आप यहाँ से शुरू करें 76 पेज सेकेंड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन से स्टार्ट करें और आप जाएं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 लाइन तक। सेकेंड लाइन से लेकर 6 लाइन तक इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 केसेस, एक तो पेंसिल वाला कि हम लिख नहीं सकते पेंसिल से पेपर में अगर फ्रिक्शन ना, और एक वॉक वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, नोट्स में आ जाए दोबारा पेज नंबर 9 पर। हाउ डज ऑयलिंग द मूविंग पार्ट्स ऑफ अ मशीन लोअर्स फ्रिक्शन। ऑयल एंटर्स इनटू पिट्स एंड बम्प्स बाय मेकिंग सरफेस फाइन एंड स्मूथ। मैंने आपको बताया था कि पिट्स एंड बम्प्स होते हैं, हर सरफेस में स्मूथ नहीं होती, जो ज़्यादा रफ होती हैं उनमें ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, या कोल्ड वेट ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। सो वहाँ पर क्या करता है, ऑयल जाता है उन पिट्स एंड बम्प्स में और उन सरफेस को फिल कर देता है और स्मूथ कर देता है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। सो ऑयल एंटर्स इनटू पिट्स एंड बम्प्स बाय मेकिंग सरफेस फाइन एंड स्मूथ। व्हेन सरफेस कोलाइड दे डोंट रेजिस्ट टू मच एंड फ्रिक्शन डिक्रीजेज। कि जब वो मिलती हैं आपस में स्लाइड करती हैं तब फ्रिक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, रेजिस्ट नहीं करती हैं अपने मोशन को, बल्कि कंटिन्यू रखती हैं और फ्रिक्शन कम हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास है डिस्क्राइब वेज टू रिड्यूस फ्रिक्शन, पेज नंबर 76, मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ये तीनों या चारों आप लिख देंगे इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट, वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये मैंने आपको लिखवाया है क्लास में, रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं, उसमें लिखवाया है। नेक्स्ट आपके पास है 3.18, उसमें सिंपल टेंशन इन अ स्ट्रिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफएस, ये सारी जितनी भी चीज़ें इनकी डेफिनेशन है, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होती है उसका सारा लिखना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेसिकली। क्रीम सेपरेटर क्या होता है, वो जो लास्ट लेक्चर में बताया था उस पर नोट लिखना है, ये सब पे नोट लिखना है। सीट बेल्ट, स्किडिंग ऑफ व्हीकल्स, जो ब्रेकिंग एंड स्किडिंग हमने पढ़ा था, तो ये आपको पढ़ा दिया, अब आप खुद से इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। नेक्स्ट 3.19, व्हाट वुड हैपन इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स, ठीक है। इसका आप देख लें आंसर, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन वी कुड नॉट एबल टू वॉक ऑन द ग्राउंड, वी वुड बी स्लिपिंग ऑल द टाइम, नथिंग वुड बी स्टेडी ऑन द ग्राउंड, मैनी थिंग्स वुड बी जस्ट स्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग। ये मैंने आपको जब फ्रिक्शन पढ़ाया था तब भी बताया था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कॉन्सेप्ट या फिनोमिना ना रखा होता तो हम स्लाइड ही करते जाते और रुकते ही ना। फ्रिक्शन हमें स्टॉप करवाती है, जिस तरह टायर, मोटरसाइकिल का टायर स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्योंकि ज़्यादा होती है और फ्रिक्शन की वजह से रुकता है, अगर फ्रिक्शन ना होती तो सब मूव करते रहते, स्टेडी कोई भी ना होता, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंस है कि अगर फ्रिक्शन डिसअपीयर हो जाए तो ये हम स्टॉप ही नहीं करेंगे। लास्ट, वाई द स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज मेड टू स्पिन एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। इसका आंसर पेज नंबर 79, ठीक है। आपके पास ये जो सारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या सारा पैराग्राफ आप नाम भी लिखें, आप इसकी आ जाएं 1 2 3 4 5th लाइन लास्ट पर पेज नंबर 79, वॉशिंग मशीन ड्राई की हेडिंग की 5th लाइन लास्ट पे, व्हेन इट स्पिन्स, ठीक है। सो व्हेन इट की जगह आप इसके आंसर में लिखेंगे व्हेन क्या है आपके पास, व्हेन स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन, क्या लिखेंगे, व्हेन स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन, इट को काट के, व्हेन स्पिनर ऑफ अ वॉशिंग मशीन स्पिन्स एट अ हाई स्पीड, द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स इज फोर्स्ड आउट थ्रू द होल्स ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मैंने बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहाँ ज़्यादा हो जाती है, वो बजाय सर्कल के अंदर फेंकने के, उस स्पिनर के अंदर फेंकने के वाटर को वो स्पिनर से बाहर फेंकता है ड्यू टू लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एक्सेस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके अगर आपको नहीं समझ आ रही तो जो पिछला लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो ये आपके पास व्हेन से लेकर लास्ट तक जहाँ तक कि ख़त्म हो रहा है इसका आंसर आ जाए। सो आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मैंने नोट्स में नहीं बताए, क्लास में अच्छी तरह से करा दिए थे, 2 वो, और उसके अलावा आप देख सकते हैं और जितने भी यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चन हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 आपके पास 7 और 2 वो 9 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन है। तो काफ़ी बड़ा चैप्टर था, हमें टाइम भी लग गया कंप्लीट करने में, लेकिन इसलिए टाइम लगा कि अच्छी तरह से समझाना था आपको। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और आप साथ साथ इसको पढ़ रहे होंगे। सो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। इफ़ यू फाइंड एनी क्यूरी और प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस थ्रू अ नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, थ्रू अ वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और थ्रू एन इमेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में उसको सॉल्व किया जाएगा। आज का लेक्चर हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।